Okay, so welcome again. So in the last session, we have actually discussed how the simple website can be built and how it can be hosted on the local server, and we have solved car purchase problem, and that was the project yesterday. We completed that in one single session. In today's session, we will be doing another project, and that will be brain tumor detection. Already we have studied this project, and we have created a trained model, and we have tested how the brain tumor can be detected from the available data set or whatever images we are having. And secondly, the similar approach can be applied to detect plant leaf disease. Even you can detect the type of agricultural soil, and accordingly you can suggest farmer what kind of crop should be, or that has to be taken in that soil, or which is suitable to that particular soil. So these simple techniques or these simple things you can do if you are familiar with the CNN algorithm, image processing, and this kind of environment. So now in the today's session, we will be talking about how the brain tumor can be detected, and already we have trained the model, and we have created testing code as well. So we will be using the same code, but this time we will be creating a website for that, where you will be able to upload the image, the CT scan, and then you will be able to test it, and that will be hosted on the local server. And secondly, you can also operate that thing from your mobile phone as well. Plus we will be hosting that in such a way that we will be using some hosting service, so that it will be available worldwide. So that's the agenda for today's session. So here, the hosting part and hosting on local server, how it can be made available all over the world over the internet. So that technique we are going to see in today's session. So we'll be hosting on local server only, but that local server will be available to any other device outside the network. Now, up till now, whatever I have said, that was hosting on the local server and connecting your mobile phone and your computer in the same network. In that case, you will be able to access that thing in your mobile phone. But now I will be hosting this site in my computer, and I will share the link or the URL for that, and you will be opening that URL in your PC or in your mobile phone. So that's what we are going to try in today's session. So as usual, here I have created some folders and some files. So this CNN test and this Keras model, this is from our OpenCV and the computer vision module we have seen. So there we have created this cnn test.py and the keras model.h5, these two files. So I have directly taken those files over here. Then I am having the templates folder. Right now it is empty, no file is there. So we'll be creating some html file over here. And then I am having this static file. So in the static folder, inside that I am having the images folder, and I have some blank image over here. Now this image I will be using for development of my web application, where before you upload any image, this image will be there, and this image will act as the substitute for any image you upload. So that will be an image area that I'm going to upload. So with this, I will be opening here the uh, the basic ID, that is the Visual Studio Code. So here I'll type the CMD and then code, and then we will wait for the uh, browser. Okay, so now nothing is there. Okay, so these files in the same folder. Okay, so now we'll open this file, and let us zoom. Okay, in this area. So this is what we have tried last time. We have created this file, and we have created this kind of structure. And basically, the first step was loading the packages. So we have loaded so many packages. So that is mostly the TensorFlow and the PIL and the image processing packages. And secondly, we have also loaded the train model. So previously we have trained this model, and we have loaded this model, and after loading this model we have applied one image to this model,
and this model was able to predict the correct result for our uh, input image. Now here, how this is done, so that's what we are going to discuss over here. So first of all, this is the model, and then we have created some empty uh, array with this shape, and then we have created a predict tumor function, and for which the img or the image will be input, and that will be passed to this particular model, and this is going to perform some basic operations like resizing that image, then normalization, and finally it will be predicting that image. And if the it is equals to 0, that means the brain tumor is detected, that will be printed, and it will return the brain tumor detected. And if the CT scan is normal, then in that case normal CT scan or the MRI scan, and it will print this and it will return this value. Okay, now this is what we have done already. So here, once you train your model, CNN model, you just take a new image as input, and that you pass to this function, and this function will take that image and it will process that image and it will predict the result for that particular image. Now we are going to use this file to create the Python, or what we can say, the website or the web application using Flask framework. Now in order to create that, I'll be creating a new file called mysite.py. Okay, you may give any other name, so I'm giving mysite.py as name. And as usual, the first step will be importing the Flask. So Flask import r. Okay, so everything will be loaded from the Flask framework. So here, in order to load some files and all, some few libraries we will be requiring. So we'll be loading that. So first library is from WERKZUZ. This is the library. Import secure file name. This is used to find out the file name of the uploaded file. And then let's say some image processing library like CV2, as we are dealing with the images. So this library will be required. And from the CNN underscore test, that's the module, import predict tumor function, right? So this is CNN underscore test, and from which we will be importing the main function, that is this predict tumor function, and to this function we will be passing this image, and that will be loaded, and that will be taken. Okay, so now in the my site, so this is what we will be loading over here. And now we can actually start with the app development. So app equals to, this will be a Flask, and inside that it should be double underscore name double underscore, as you know. So that's the app is initialized, and we'll be creating only one root. So at the rate app dot root, and then it will be like this. And yesterday we have seen, in order to have the button submit and form submit option, so we should have the methods over here, and that will be get post. So these are HTTP methods that are required if you are planning to send some data to server. So the HTTP protocol will be there, and that will be handling all these things, sending some data to server, or the communication which is happening from the backend to the server, and all these things, and whatever data you are uploading to your server from the client side. So from the client side, as a client, you are going to use this web application maybe in your mobile phone or maybe in your laptop. So you may be uploading some image or putting some data. So that will be handled by the get post methods of HTTP protocol. That's how we should mention over here. And then we should create a function. So that will be a def, and it can be anything. So here I just write brain as a function name, and then here I should be doing some stuff. So basically, simple thing I will be doing, return render template, and here some name I will be giving. So this name will be, let's say I'll create a brain tumor or the brain.html, this brain.html. So that's the template.
I will be rendering over here. Okay, so that's simple thing. And at the end, if the double underscore name double underscore is equals to double underscore main double underscore, of course it should be in a single or double inverted comma. Only in that case you will be running this app. So app dot run, and of course the host you will be providing, so it will be 0.0.0.0, and then the port you must provide 5000, and of course the debug mode has to be true, right? So with this we will be able to host our web application, and our web application will run with this simple code. So we have hosted this on the local server, that is 0.0.0, and its port is 5000, and its debug mode is true. So in this way it will be hosted on some local server or on the some local host, and basically it is now uh, can be hosted, and it can operate, or we will be able to upload our web or any image, and we can test it out. Okay, I think something is wrong. Okay. Need to reshare, I think. Okay, so as we have seen, this will be a very simple code that will be used to create a basic web application, and this will be hosted on local server, and it will be also available on mobile phone. And now objective is to have a image upload feature, and once you upload the image, that will be tested for whether it is having the brain tumor or not. And for that purpose this thing can be done. The predict tumor function will do that. So inside this brain function, there will be few things, like where the we will be taking the image which the user is going to upload there, and that image we will be using here. Now for that purpose, obviously we will be creating some HTML file that will be called as brain.html, and that we will create inside this template folder. So here I will create a new file called brain.html. Now the job of this file, this HTML code, to have a something like image upload feature and some buttons, to whenever we'll click that button, it will test it for whether the uploaded CT scan or MRI scan is having the brain tumor or not. In order to create this HTML file or HTML code, so the very simple step is, first of all we'll write the HTML tag. So HTML, then we will have a head tag. And these things are very common. Okay, so that's what you can try. And then title, so that, and the title will be, let's say, brain tumor. Okay, so now let's run our site. Now with this we'll run our website. We will not wait for anything else. So now it is loading few libraries, and now it's time to run our server. Okay, as the TensorFlow is there, so it will take some time. So now it is there, it is live, and now you can type over here localhost colon 5000, and now you see the empty because nothing is there inside our website. So our complete website is blank, and the brain tumor title which we have just written in our code, so that's the brain tumor. Okay, now let's add something extra in it. Now we'll add a body, and that body will have the center alignment. So we will add the center tag, and inside that we'll create a body. And inside the body, now very first thing is, let's say we may give some style to our body also. Let's say background color and all those things. So, let's say style will give as the background color.
and let's say yellow green. That will be fine. So अभी तक हमने जो भी किया है, एक empty फाइल हमने बनाई थी, and now the background color is yellow green. Now previously ये पूरा white था. अगर हम इसको refresh करेंगे, so now you see the background color is now changed to yellow green. You may choose any other color as well. और आप different तरीके से भी कर सकते हो. It's not mandatory to go and strictly follow what I am doing. But ठीक है, background color is like this. Now let's give a heading or the title of our project. So that will be H1 heading. तो इसको भी हम कुछ style दे देंगे. And its style will be, let's say, the color. इसका color होगा red. And finally what we supposed to write here. So we are interested in, let's say, brain tumor detection using the machine learning. So the brain tumor detection using machine learning or deep learning, as it's deep learning, or you may write CNN, convolutional neural network. Once you write like this, and if you hit enter here, then you see the brain tumor detection using machine learning, or whatever title you will give, it will appear over here. So likewise it will be looking like. Okay, that's fine. Now यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऐसा फीचर होना चाहिए यहाँ पे, एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि वहां पे हम फाइल को अपलोड कर सके या फिर इमेज को अपलोड करना है, और जो भी इमेज अपलोड करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए. दैट्स व्हाट वी नीड. तो यहाँ पे हम हमें एक फॉर्म चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी क्रिएटिंग अ फॉर्म यहाँ पे. सो नाउ जस्ट क्रिएट अ फॉर्म. देयर इज अ फॉर्म टैग, और जिसके अंदर कुछ बटन वगैरह होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी. So form or yesterday we already said the action उसका क्या होगा, तो it will not be having any action, and the method equals to post हमने कल देखा था, and that way the form will complete. And now the first thing is we will be giving some label over here, label, and this label, let's say it is having the H4 heading. I'm using it over here, and something. So upload the image, ऐसे कुछ तो मैं देता हूँ, upload the image or the CT or MRI scan, or MRI oblique CT scan image. That will be more precise. Okay, now इस तरह से लिखने से क्या होगा कि एक फॉर्म बन जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज दिखेगा, अपलोड दी MRI oblique CT scan image. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक ऐसे इमेज के लिए एक बॉक्स होना चाहिए बड़ा, जिसके अंदर हम अब इमेज अपलोड करेंगे. ओके, राइट, दैट्स व्हाट वी नीड. Now, in order to hold the image, there is a tag in HTML, and that tag is the image tag. तो यहाँ पे हम लेंगे उसको image, and then उसका source हमें देना होता है. source मतलब कि image कहाँ से आएंगी, from where it will be. तो by default I will be taking image or the source, let's say it's empty, और मैं उसको पास करूंगा कुछ तो, और अदरवाइज आई कैन गिव समथिंग डिफरेंट ऑल्सो. तो सोर्स आई एम नॉट स्पेसिफाइंग हियर, इट्स एम्प्टी. देन उसका स्टाइल दे देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर उसका वाइट होना चाहिए. तो इट्स शुड बी वाइट सो दैट इट विल लुक लाइक अ वाइट इमेज. एंड उसका विड्थ और हाइट हम डिफाइन करेंगे. सो लेट्स से इट्स विड्थ equals to 500. So its width will be okay, sorry, I think it's added inside it, so that's the problem. Okay, it should be outside. So its width should be 500, and the height should be 500. So 500 pixel by 500 pixel, that's the dimension of my image. तो like this, now हमने कोई भी image वहाँ पे load की है नहीं. तो जैसे मैं अब इसको करूँगा, now you see एक empty field यहाँ पे create हुआ, और यहाँ पे ये corrupted दिखा रहा है. That means there is no image, but its background color is white. That's how it is looking like white colored, and its width is 500 pixel, and height is also 500 pixel. So it's like a square image
यू कैन सी ओवर हियर। नाउ ठीक है, तो अभी एक इमेज बन गई। अब क्या होना चाहिए, इमेज आने के बाद यहाँ पे दो बटन्स होने चाहिए, एक तो अपलोड बटन और एक टेस्टिंग बटन, लाइक। एंड सेकेंडली फाइल का ब्राउजिंग बटन होना चाहिए, जिससे हम फाइल को ओपन करें या फिर ब्राउजर ओपन करें। वंस आई क्लिक ऑन दैट, इट शुड ओपन द फाइल ब्राउजिंग, और वो फाइल को ब्राउज करके एक किसी भी कंप्यूटर में से कोई भी फाइल को चूज करके उसको वो पिक करेगा, एंड पिक करके उसको यहाँ पे टेस्ट करेगा। दैट्स व्हाट वी नीड। तो उसके लिए यहाँ पे HTML के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर हम कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे। ना फर्स्ट वन इज, यहाँ पे हम इनपुट ऐड करेंगे, फाइल टाइप का इनपुट, और उसका फॉन्ट साइज वगैरह दे देंगे। बट बिफोर दैट, लेट्स से इनपुट, इसका स्टाइल दे देंगे, फॉन्ट साइज देंगे उसको, लार्जर देंगे, ओके। एंड देन इसका टाइप डिफाइन करेंगे, टाइप होगा इसका फाइल। तो फाइल अगर किसी इनपुट का टाइप है, इसका मतलब है वो फाइल ब्राउजिंग का इनपुट है। और अगर इसको कुछ नेम देना चाहते हो आप, तो नेम दे सकते हो, लेट्स से सीटी स्कैन, ओके, सीटी और एमआरआई स्कैन, एनी नेम यू मे गिव, बट आई एम गिविंग एज सीटी स्कैन। तो ये हो गया। अगर आप इसको देखोगे ना, क्या होगा अब यहाँ पे, जैसे मैं इसको ये करूँगा, तो यहाँ पे एक ये फील्ड आ गया, देखो, चूज फाइल। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, तो ये ब्राउजर ओपन कर रहा है, तो मैं कंप्यूटर में से कहीं से भी एक फाइल को पिक कर सकता हूँ और उसको अपलोड करवा सकता हूँ। ओके, दैट्स द मीनिंग। बट नाउ एज इट इज इन द सेम रो, उसको नीचे करने के लिए हम एक पेज ब्रेक वहां पे दे देंगे आफ्टर दिस वन। सो इट विल बी ए br, so it will be creating a break, so it will be new line। एंड नाउ अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, now it's coming on the bottom side, okay, and of course some gap is there। okay, now that's fine। तो ये हो गया, वो फाइल को पिक तो करेगा, लेकिन पिक करने के बाद उसको अपलोड भी करना होगा। तो हम एक सबमिट बटन क्रिएट करेंगे और एक बटन बनाएंगे जो उसको अपलोड करेगा। तो नाउ अगेन विल क्रिएट अ इनपुट, and its style will be, let's say, its font size, same thing, and it's larger, okay, and its type, this time it should be submit बटन होना चाहिए। एंड इसका नेम, नेम भी दे देंगे उसको कुछ तो। सो नेम हैज टू बी, लेट्स से, सब करके नाम देते हैं उसको। और उसका वैल्यू, वैल्यू मतलब उसके ऊपर क्या दिखेगा, तो उसके ऊपर दिखेगा अपलोड। नाउ सेव, एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस वन। Now we see this is the upload button. I can see over here. This is the upload button. Okay. Now one more button we will create, and that will be the टेस्ट बटन। उसके ऊपर टेस्ट होगा। अपलोड होने के बाद क्या होना चाहिए, वो अपलोड होने के बाद दैट इमेज मस्ट बी डिस्प्लेड इन दैट विंडो। और एक बार वो विंडो में वो इमेज डिस्प्ले होगी, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, आई शुड test that, and for testing purpose I will be using the test button, okay। So that's what I will be trying, so for testing I will be using test button। तो फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करवा देंगे, एंड वही सब कुछ, फॉन्ट साइज लार्ज, सबमिट सब, इसका नेम भी वही होगा, लेकिन इट विल बी अ टेस्ट बटन, इसका वैल्यू होगा टेस्ट। तो अब अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, नाउ आई एम हैविंग दिस अपलोड एंड टेस्ट फीचर। तो ये सब कुछ होने के बाद इसके नीचे एक लेबल होना चाहिए, जिस लेबल के अंदर उसका प्रिडिक्शन दिखेगा। तो वो राइट करने के लिए, और इन ऑर्डर टू राइट दैट लेबल, so let's add a br tag and then add a label, and of course now I will be using the h3 tag। आप कुछ भी और यूज कर सकते हो, हेडिंग h3 लिख रहा हूँ, एंड दिस इज प्रेडिक्शन कोलन, यहाँ पे अपना रिजल्ट आएगा। ओके, सो आई जस्ट क्रिएट दिस फील्ड सो दैट इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम आवर python side, okay। So this will be pass data। Now this will look like this only, so it will be, and if you want to change the color, so उसका color हम change करेंगे, color blue करते हैं, just like yesterday।
Now everything is done. Almost everything is done. Now we are ready for the Python code. Okay, now the prediction is here. Everything is here. Now, whatever basic things that we were required, that everything is now here. तो हमें एक वेबसाइट चाहिए थी जिसके ऊपर हम ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग लिख पाएंगे. देन अपलोड दी सी टी एन एम आर आई स्कैन इमेज, यहाँ पे मैसेज है. तो यहाँ पे चूज बटन है, तो इसको क्लिक करने से हम कोई एक फाइल पिक करेंगे, और वो जो फाइल पिक होगी, अगर मैं उसको अपलोड बटन को क्लिक करूंगा तो वो फाइल यहाँ पे दिखेगी. दैट इमेज शुड बी डिस्प्लेड ओवर हियर. और जब मैं उसको टेस्ट बटन को क्लिक करूंगा तो ये जो इमेज यहाँ पे अपलोड की हुई है, दैट विल बी गिवन टू आवर प्रेडिक्शन मॉडल, दैट इज डीप लर्निंग मॉडल, और जो भी हमने केराज मॉडल डॉट एच फाइव फाइल बनाई है उसको जाएगा. एंड दैट विल प्रिडिक्ट कि इसके अंदर ब्रेन ट्यूमर है या नहीं. एंड आफ्टर प्रिडिक्शन इट विल सेंड बैक दैट रिजल्ट, इट विल रिटर्न दैट रिजल्ट, एंड वो जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन. सिर्फ एक चीज यहाँ पे बाकी है, एंड दिस थिंग इज फॉर दिस फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू. तो बेसिकली ये जो फॉर्म में जो भी डेटा हम यहाँ पे सबमिट करते हैं उसका एक टाइप होता है, एनकोडिंग टाइप होता है. तो बाय डिफॉल्ट दैट एनकोडिंग टाइप डज नॉट सपोर्ट सेंडिंग फाइल्स थ्रू द फॉर्म. ओके, तो फाइल्स के थ्रू, या सॉरी द फॉर्म के थ्रू कुछ भी फाइल्स सेंड करना सर्वर को, ये सपोर्ट नहीं होता. जो भी डिफॉल्ट इसका एनकोडिंग टाइप होता है, तो हमें उसका एनकोडिंग टाइप जो है वो ENC टाइप हमें यहाँ पे चेंज करना होगा. एंड दैट टाइप विल बी दिस फॉर्म डेटा. अगर बाय डिफॉल्ट इट इज लाइक दिस URL एनकोडेड होता है, दिस www डैश URL एनकोडेड, ये होता है बाय डिफॉल्ट. दिस पर्टिकुलर टाइप इज सम सॉर्ट ऑफ एनकोडिंग. जो फॉर्म का आप डेटा सबमिट करते हो दैट इज एनकोडेड इन सम फॉर्म एंड देन इट इज सेंट. Secondly, this does not allow to send, or this does not allow to encode any kind of files, images. Files may be CSV files, PDFs, or Word documents, image files. This is not allowed in this type. So by default, the type is this. But if you choose plain text, in that case only textual data will be considered. Again, the files and the images will not be considered. So we'll use this one, form data. This will support uploading the files and loading all these files on the server. Okay, so this will support uploading the files through that file input button. Now as we have done this, now we are done with the changes and the rest of the part of this one. Now we need to worry about the Python code. Now Python code के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे देखेंगे क्या है. यहाँ पे ये चूज फाइल है ना, दिस इज इनपुट, but this is not the submit button. Okay, this is input but not the submit button. HTTP post request will be in picture whenever the submit button is clicked. That means we are sending data to server. सिर्फ उस टाइम पे ही HTTP का पोस्ट रिक्वेस्ट का फंक्शन होगा, या फिर वो रिक्वेस्ट कॉल किया जाएगा. फाइल इनपुट करने से, किसी भी फाइल को लोड करने से, इट विल नॉट be a submit request, or in that case we are not sending any data to server. सर्वर को कुछ डेटा सेंड नहीं कर रहे. सर्वर को डेटा तब भी जाएगा जब हम कोई सबमिट बटन को क्लिक करेंगे. तो यहाँ पे दो सबमिट बटन है. प्रॉब्लम इज यहाँ पे दो सबमिट बटन है, एक तो है अपलोड और दूसरा है टेस्ट. तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, दो सबमिट बटन है. तो यहाँ पे जब मैं चूज फाइल करूंगा तो मैं टेस्ट दबाऊंगा, तभी भी इन दैट वे ऑल्सो इट इज द पोस्ट, और वी आर सबमिटिंग डेटा टू सर्वर. और अपलोड कर रहा हूँ तब भी वही होगा. सो इन दैट केस सबमिट बटन कौन सा है वो डिस्टिंग्विश करना है, वेदर आई एम क्लिकिंग दिस सबमिट बटन और वेदर आई एम क्लिकिंग दिस सबमिट बटन, वो डिस्टिंग्विश करना होगा. और अगर इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ब्रेन ट्यूमर का टेस्टिंग नहीं होगा, ओनली अपलोडिंग का काम होगा. यहाँ पे फाइल डिस्प्ले होने का कोड होना चाहिए. एंड जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तब इस जो भी फाइल आपने अपलोड की है उसके ऊपर प्रिडिक्शन का काम होना चाहिए. सो दीज थिंग्स वी नीड टू
try. तो हम आएंगे यहाँ पे in the Python code, and the very first thing that will happen will be if request dot method equals to post. That means something is, some activity has happened or some submit button is clicked. Okay, so that's the meaning of request dot method equal to post. So whenever you will click this one, some post request will happen and we will submit data to our form. So that will be a HTTP post request. Now when request dot method equal to post, that means user has clicked एनी सबमिट बटन। तो वो कोई भी सबमिट बटन हो सकता है, उसको यूजर ने क्लिक किया है। तो अब यहाँ पे देखना है कि यूजर ने कौन सा सबमिट बटन क्लिक किया है। तो हम वो चेक करेंगे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर ही होगा ना, तो क्या है वो, सब उसका नाम है, इक्वल्स टू अपलोड, अपलोड बटन है। तो यहाँ पे आएगा फाइल अपलोडिंग का कोड। ओके, और अगर और एक इफ लेता हूँ, इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, उसके अंदर भी सब, क्योंकि सब बटन उसका नाम है, इट्स नेम ऑफ दैट बटन, दैट्स हाउ आई एम टेकिंग इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म सब इज द नेम ऑफ दैट बटन, दैट्स हाउ आई एम टेकिंग। एंड इफ इट इज टेस्ट, in that case here it will be a brain tumor detection code. In this case there will be a brain tumor detection code. तो यहाँ पे होगा brain tumor detection का कोड। ओके, सो लाइकवाइज वी कैन ट्राई। तो हम इसके अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करेंगे कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है तो हम चेक करेंगे कि कौन सा बटन क्लिक्ड है, अपलोड का क्लिक्ड है या फिर टेस्ट का क्लिक है। और जो अपलोड और टेस्ट बटन है उन दोनों के भी नाम सेम है। अगर आप इसके अंदर जाओगे ब्रेन ट्यूमर सॉरी द ब्रेन डॉट एच के अंदर, तो ये जो अपलोड बटन है जिसका वैल्यू अपलोड है उसका नेम SUB सब रखा है मैंने, और जो टेस्ट है उसका भी नाम क्या है, सब है। तो अगर यहाँ पे अपलोड बटन क्लिक हुआ है तो इसके अंदर फाइल अपलोडिंग का कोड मुझे लिखना पड़ेगा, और अगर टेस्ट बटन को क्लिक किया है तो ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन का कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दैट्स द सिंपल थिंग। तो इतना ही सिंपल चीज है, इतना ही याद रखना है। तो अब हमें लेना है उसमें से फाइल। तो अगर यहाँ पे अपलोड बटन को क्लिक हुआ है, आई एम इक्वल्स टू, मतलब एक वेरिएबल लिया इमेज के लिए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, क्योंकि फाइल इनपुट है, एंड उसके अंदर कौन सी फाइल हम लेने वाले हैं, CT स्कैन। ओके, ये जो CT स्कैन है ना, दैट्स व्हाट आई हैव गिवन द नेम टू दैट फाइल इनपुट। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो भी आपका फाइल इनपुट है, दिस इनपुट विच टाइप इज फाइल, तो यहाँ पे उसका जो नेम है CT स्कैन है। तो इसमें आप जो भी अपलोड करो, मतलब ये फाइल इनपुट का बटन, मतलब कौन सा बटन, दिस बटन। सो वेन एवर यू विल क्लिक दिस बटन, चूज फाइल बटन, तो इसके अंदर जो भी फाइल आएगी वो फाइल हम ले लेंगे यहाँ पे IAM वेरिएबल के अंदर। ओके, दैट फाइल विल बी अवेलेबल इन IAM वेरिएबल के अंदर। तो अब हम इसको सेव करेंगे। तो IAM डॉट सेव, सर्वर पे सेव कर देंगे। कहाँ पे सेव करेंगे, लेट्स, ये जो स्टैटिक फोल्डर है उसके अंदर ऑलरेडी हमने इमेजेस करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो इसके अंदर हम इसको सेव कर देंगे और इसको प्लस करेंगे क्योंकि उसका नाम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सिक्योर फाइल नेम, और इसमें होगा im डॉट फाइल नेम, इसका नाम। तो im is the object which contains the name of file as well, सब कुछ। तो इसको हम सेव करेंगे तो im डॉट सेव किसके अंदर, स्टैटिक फोल्डर के अंदर। ऑलरेडी देयर इज अ स्टैटिक फोल्डर एंड इनसाइड दैट ओनली सैंपल डॉट जेपीजी इमेज है। तो इमेजेस के लिए हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर से हम जो भी लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम 1 डॉट जेपीजी अपलोड करेंगे
तो वो किस तरह से होगा, स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश उसका जो भी नाम आगे होगा वो होगा 1.jpg. सो इट्स प्लस ऑपरेटर मतलब क्या है, concatenation operator, string concatenation operator. So it will be adding that thing to this and it will save that image over there. So it will be saving that file. So it will be great thing. So now it will take this file and it will save that file. Okay. So fine. तो इसके अंदर फिनल मैं कुछ नहीं डालता हूँ, यहाँ पे मैं पास लिखता हूँ, नॉट टू डू एनीथिंग, एंड इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, अभी देखो वेबसाइट पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक करप्टेड फाइल दिखा रहा है। तो ये करप्टेड फाइल किस वजह से है, क्योंकि कोई इमेज ही स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर हम ब्रेन ट्यूमर इस HTML कोड के अंदर जाएंगे और जो इमेज टैग हमने लिया है IMG, इसका सोर्स एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश जो सैम्पल इमेज है ना अपनी वहाँ पे सैम्पल डॉट जेपीजी लेता हूँ, सैम्पल डॉट जेपीजी मतलब दिस, इसके अंदर स्टैटिक के अंदर इमेजेस के अंदर क्या है, सैम्पल डॉट जेपीजी। तो वहाँ पे ये इमेज डिस्प्ले करो, वो भी वाइट कलर का ही इमेज है। तो सर्वर एक्चुअली स्टॉप्ड है हमारा, तो उसको रन करना पड़ेगा मुझे। तो लेट्स रन दिस सर्वर एंड वी विल सी व्हाट हैपन्स if we do this. Now the server will start and it has started. तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये करप्टेड है इनिशियली यहाँ पे। सो नाउ वंस वी रिफ्रेश, नाउ सी दिस इज द न्यू इमेज, इसको बॉर्डर भी है ब्लैक कलर का, सो दैट इमेज इज नाउ एंड दैट करप्टेड, सो इट्स वाइट कलर्ड इमेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये हार्ड कोडेड हो गया कि ये इमेज यहाँ से इस तरह से डायनेमिकली नहीं आ रही है, मतलब ये यही पे होगी और यही दिखेगी हमेशा, आप कुछ भी करो, कुछ भी फाइल अपलोड करो, यही इमेज दिखेगी। तो क्या हम इसको डायनेमिक बना सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली बना सकते हैं। तो इसको हम देंगे हटा के और यहाँ पे डाल देंगे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिखेंगे इमेज पाथ, इमेज अंडरस्कोर पाथ, एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसा हमने यहाँ पे रिजल्ट लिया ना, तो वैसे यहाँ पे इमेज अंडरस्कोर पाथ, एंड देन इन माय साइट यहाँ पे जो ब्रेन ट्यूमर है ना, इसके इधर हम लिखेंगे इमेज अंडरस्कोर पाथ इक्वल्स टू, यहाँ पे असाइन करेंगे स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश सैम्पल डॉट जेपीजी। ओके, इस तरह से हो जाएगा। तो अब के बार क्या होगा कि जो ये इमेज पाथ है वो यहाँ से जाएगा एंड वेन एवर देर इज नो बटन क्लिक्ड, बाय डिफॉल्ट इमेज का पाथ ये होगा एंड दिस इमेज विल बी डिस्प्लेड देयर। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, नाउ अगेन आई विल रिफ्रेश इट, बाय डिफॉल्ट नथिंग इज क्लिक्ड, सो दैट इमेज इज नाउ डिस्प्लेड, सो एवरीथिंग इज फंक्शनिंग वेरी फाइन। सो नाउ वहाँ पे जो है ना, इस वेरिएबल की वैल्यू हम पास करेंगे, रिजल्ट की भी वैल्यू हम पास करेंगे। सो वेन एवर आई विल पास इमेज पाथ, that path will be displayed, that image will be displayed over here. तो यहाँ पे हमने इमेज को सेव कर लिया, ओके, दैट इज फाइन, इट्स वेरी करेक्ट। नाउ हम क्या करेंगे, इमेज का पाथ हम डायनेमिक कर देंगे यहाँ पे। सो इमेज अंडरस्कोर पाथ इक्वल्स टू, ये पाथ क्या होगा, स्टैटिक स्लैश इमेजेस, ओके, एंड दिस हैज टू बी in the single inverted comma as it's a string। ये हो गया, प्लस प्लस क्या होगा, ये वाला चीज सिक्योर फाइल नेम, उस जो भी अपने फाइल अपलोड किए उसका नेम, एंड देन यहाँ पे भी हम रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट एंड ऑफ कोर्स द ब्रेन डॉट HTML। लेकिन दिस टाइम इमेज का जो पाथ होगा, इमेज अंडरस्कोर पाथ विल बी इक्वल्स टू दिस इमेज अंडरस्कोर पाथ, दिस वेरिएबल। आया समझ में हमने क्या किया? तो इमेज का जो पाथ है वो डायनेमिक रखना है। तो यहाँ पे जब हम इमेज अपलोड करेंगे, वो इमेज हम कहाँ पे सेव करें, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस करके एक फोल्डर है, उसके अंदर हम वो इमेज को सेव कर देंगे। तो इमेज का पाथ जो अपने इमेज अपलोड की वो चली जाएंगी स्टैटिक फोल्डर के अंदर। तो फिर इमेज का पाथ क्या होगा,
ये स्टैटिक इमेजेस और उसका जो भी नाम होगा, लेट्स से 1.jpg, तो स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश 1.jpg। अगर ब्रेन डॉट जेपीजी है तो स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश ब्रेन डॉट जेपीजी। तो इमेज का पाथ अब चेंज होगा। तो ये होगा एक्शन जब हम अपलोड बटन को हिट करेंगे, तब अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे सारा चीज़। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे, चूज फाइल करेंगे, एंड नाउ कहीं से तो हम यहाँ पे इमेज को लोड करेंगे। आई थिंक दैट वाज इन दी कंप्यूटर विजन। इसके अंदर हमारे पास डेटा सेट है, इसके अंदर ट्रेनिंग सेट है। तो मैं नॉर्मल में से लेट्स से आई ओपन दिस 2.jpg, ओके। तो यहाँ पे आ गया 2.jpg, लेकिन ये अपलोड हुआ है कि नहीं। जब हम अपलोड बटन को हिट करेंगे, नाउ दैट इमेज इज नाउ अपीयरिंग ओवर हियर बिकॉज उसका पाथ हमने डायनेमिक रखा था। जो इमेज हमने चूज की वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, दैट्स फाइन। सो नाउ एवरीथिंग इज फंक्शनिंग वेरी नाइसली। तो ये हो गया अपना अपलोड का काम। अब हमें सोचना है इसके बारे में। जब हम whenever I will click on test button, what to do? जब टेस्ट बटन को क्लिक करना है तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, हमने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा है। whenever I will hit the test button, everything is there, हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट ट्यूमर करके एक फंक्शन बनाया है, तो यहाँ पे सिंपली एक रिजल्ट वेरिएबल होगा, रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पे होगा प्रेडिक्ट ट्यूमर, और इसको इमेज देना है। तो इमेज कहाँ से आएगी इसके अंदर? इमेज का जो पाथ है ना, वहां से इमेज उठाओ और ये जो भी इमेज हो यहाँ पे जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा? रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। कौन सा टेम्पलेट? ब्रेन डॉट एच टी एम एल, वही टेम्पलेट, लेकिन इसके साथ इमेज पाथ भी हमें देना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू इमेज पाथ। उसके साथ ही हमें देना पड़ेगा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, इक्वल्स टू रिजल्ट। तो हो गया, दैट्स डन, दैट्स एवरीथिंग इज डन। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे अपलोड बटन को, तो आपने देखा होगा कि पेज रिफ्रेश हो रहा है। इफ यू सी ना, इफ यू चूज समथिंग हियर एंड लेट्स से वही उसी को अपलोड करता हूँ मैं, ये टू एंड अपलोड, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। दिस पेज इज गेटिंग refreshed after uploading that. So if it is happening like that, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हो चुके हैं, all these variables will lost, they will no longer be available. Now वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो इमेज पाथ का जो वेरिएबल है उसे हम बना देंगे ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए हमें इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इमेज अंडरस्कोर पाथ, और इस तरह से इसके अंदर empty रखेंगे, इनिशियली पाथ इज empty। ओके, नाउ इट्स द ग्लोबल वेरिएबल, और वो यहाँ पे हम ग्लोबल है इस वाले फंक्शन के अंदर, दैट वेरिएबल इज ग्लोबल। इन ऑर्डर टू मेंशन दैट विल यूज अ ग्लोबल कीवर्ड एंड दिस इमेज पाथ वेरिएबल। नाउ द इमेज पाथ वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल। नाउ यहाँ पे होगा क्या? तो जैसे ही यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, दैट मीन्स आई एम क्लिकिंग ऑन दैट बटन, एनी बटन मे बी, उसको अभी यहाँ पे इस वाले लाइन पे पता नहीं है कि क्या बटन क्लिक हुआ है। अगर कुछ बटन ही क्लिक नहीं हुआ है तो मतलब ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अंदर का तो भूल जाओ, ये सब कुछ भूल जाओ, तो ये सारा चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर कुछ भी बटन क्लिक नहीं है। तो इन दैट केस क्या होगा कि ये फाइनल जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रेंडर टेम्पलेट ब्रेन डॉट एच टी एम एल, ठीक है, तो ये ब्रेन डॉट एच टी एम एल को रेंडर करेगा। इस वाले केस में इमेज का पाथ क्या होगा? स्टैटिक इमेजेस सैंपल डॉट जेपीजी। इसका मतलब है अगर मैं वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन करूंगा और किसी भी बटन को क्लिक नहीं करूंगा तो वहां पे डिस्प्ले होगा सैंपल डॉट जेपीजी। तो अगर इसको हम क्लोज कर देंगे पूरी तरह से एंड यहाँ पे डालेंगे लोकल होस्ट कोलन 5000, तो ये ओपन करेगा सैंपल डॉट जेपीजी। यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है सैंपल डॉट जेपीजी, दैट्स दैट इमेज, सैंपल डॉट जेपीजी इज गेटिंग डिस्प्लेड ओवर देयर। ओके फाइन। अब हम देखेंगे कि क्या होगा अगर किसी बटन को क्लिक किया जाएगा, मतलब किसी एक सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। तो इस वाले लाइन पे एब्सोल्युटली द प्रोग्राम डजंट नो विच बटन इज क्लिक्ड, वेदर अपलोड बटन इज क्लिक्ड और वेदर टेस्ट बटन इज क्लिक्ड। तो वो हम चेक करेंगे इस वाले लाइन पे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म
सबमिट बटन में से अगर अपने अपलोड बटन को क्लिक किया है तो हम काम करेंगे फाइल को अपलोड करने का। तो फाइल को अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, जो फाइल इनपुट वहाँ पे जो ब्राउजिंग बटन है जिसको क्लिक करने से वो फाइल ब्राउजर ओपन होता है और आप फाइल पिक करते हो, जिसका नाम है, इसके अंदर हमेशा नेम होता है। जब भी ये सब ये ऑल दिस थिंग्स आर द नेम्स। तो सिटी स्कैन जो आपका फाइल इनपुट है, उसने अपने जो भी फाइल चूज की है, जो भी फाइल पिक की है, उस फाइल का सारा डेटा आई एम वेरिएबल के अंदर आएगा। So this variable can be anything. Right now I'm taking it as I am variable, but it can be a different variable also. So वो सारा चीज I am variable के अंदर आएगा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आएगी, I am के अंदर आएगा। फिर जो अपने फाइल वहां से उठाई है उसको हमें सेव करना है। तो सेव कहाँ पे करेंगे, आप यहाँ पे देखो स्टैटिक के अंदर ये 2.jpg आ चुकी है। तो वो कहाँ से ये सेव कर लिए, बिकॉज ऑफ दिस लाइन आई एम डॉट सेव। कहाँ पे सेव करना है, स्टैटिक के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर, प्लस फाइल का नाम उसको जोड़ दो, मतलब 2.jpg और समथिंग। सो इन दैट केस स्टैटिक के अंदर इमेजेस के अंदर वो जो भी फाइल नेम था, जो भी आपने पिक किया है, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, सेव हो गया, दैट्स फाइन। अब इमेज का पाथ क्या होगा, जो इमेज वेबसाइट पे डिस्प्ले करनी है उसका पाथ अब यहाँ पे चेंज हो रहा है। वो ये सैम्पल डॉट जेपीजी नहीं है, दैट इज द इमेज विच यू हैव अपलोडेड। तो उसका पाथ क्या होगा, स्टैटिक के अंदर इमेजेस के अंदर वो जो भी नेम है उस इमेज का जो हमने अपलोड किया, उसका जो भी फाइल नेम होगा। अब इस वाले केस में फाइल नेम है 2.jpg, तो स्टैटिक स्लैश इमेजेस स्लैश 2.jpg वो होगा इमेज का पाथ। और वो इमेज आपको वहां पे डिस्प्ले करनी है, इसलिए रेंडर टेम्पलेट ब्रांड डॉट एच टी एम एल को ही करो, मतलब ब्रांड डॉट, ये यहाँ पे भी ब्रांड डॉट एच टी एम एल को ही रेंडर होता था, यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, वो है इमेज का पाथ। इमेज का पाथ दिस टाइम 2.jpg होगा, जो कि ये इमेज अपलोड हुआ है। इस वाले केस में सैम्पल डॉट जेपीजी था। तो यहाँ पे इन दिस कोड, इन द ब्रांड डॉट एच टी एम एल, इमेज का पाथ एक डायनेमिक वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू पास। तो यहाँ पे हमने वो पास किया। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ठीक है अपलोड हो जाएगा। लेकिन फिर ब्रेन ट्यूमर है या नहीं वो कहाँ से टेस्टिंग किया जाएगा, तो वो टेस्टिंग करने के लिए फिर से हम चेक करेंगे कि क्या टेस्ट बटन को यूजर ने क्लिक किया है। अगर टेस्ट बटन को क्लिक किया है तो इन दैट केस दिस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसके अंदर प्रेडिक्ट ट्यूमर फंक्शन को कॉल होगा, और कॉल करते टाइम इमेज का जो पाथ है, मतलब जो इमेज आपने लोड की है, वो इमेज प्रेडिक्ट ट्यूमर को दी जाएंगी। तो प्रेडिक्ट ट्यूमर फंक्शन इसके अंदर है। प्रेडिक्ट ट्यूमर के अंदर जो इमेज आपने ली है वो इमेज यहाँ पे आएंगी, उस इमेज को ओपन किया जाएगा, उसको साइज जो है 224 by 2, अगर वो कुछ अलग साइज का है तो इट विल बी कन्वर्टेड टू 224 by 224। देन उसको एरे में कन्वर्ट किया जाएगा वो इमेज को, देन उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसको प्रिडिक्शन के लिए ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन को दिया जाएगा। और ये जो मॉडल है ये प्रीवियसली ट्रेन मॉडल, जो कि ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी है, उस मॉडल को दिया जाएगा। एंड देन इट विल प्रिंट इट प्रिडिक्शन, उसका सारा प्रिडिक्शन जो भी है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू बेसिकली वो प्रिंट करेगा। वो प्रिंटिंग यहाँ पे होगा, अगर आपने अभी तक किया नहीं है लेकिन यहाँ पे वो प्रिंटिंग होगा। फिर उसमें से हम मैक्सिमम कौन सा इंडेक्स है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर इंडेक्स 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर है, तो वो प्रिंट भी करेगा यहाँ पे टर्मिनल पे, एंड यहाँ से रिटर्न करेगा ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टेड। अदरवाइज यहाँ से रिटर्न करेगा नॉर्मल सिटी स्कैन। तो यहाँ से जो कुछ भी रिटर्न होगा वो कैच किया जाएगा इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, सब कुछ आएगा। द रिजल्ट वेरिएबल कुड हैव वैल्यू लाइक ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टेड और समटाइम्स नॉर्मल सिटी स्कैन, ऐसे उसकी वैल्यू होगी रिजल्ट वेरिएबल। तो अब इस वाले केस में भी हम वही सब कुछ करेंगे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट ही करेंगे, ब्रेन डॉट एच टी एम एल को ही रेंडर करेंगे, लेकिन इमेज का पाथ जो इमेज आपने अपलोड की वो होगी। एडिशनली हम एक वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहे हैं जो है रिजल्ट, जो कि इस वाले केस में, पहले वाले केस में हमने किया नहीं है। और जो रिजल्ट है वो होगा ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड। तो सारी चीजें जो है ना, लास्ट कल का जो प्रैक्टिकल था उसी तरह से हमने ये इस वाले प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया है।
ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे हम इमेजेस के साथ हैंडलिंग किया है। लास्ट टाइम हमने कुछ वैल्यूज डाली थी, लेट्स से 19 एंड 19,000, दोज वेर द वैल्यूज। दिस टाइम इट इज नॉट द वैल्यू, इट इज इमेजेस। ओके, तो यहाँ तक ये सब कुछ हो गया। अब टाइम है इसको टेस्ट करने का। तो इसको क्लोज करेंगे and one more time I will be opening this localhost colon 5000 and I will be choosing the file। तो यहाँ से पहले तो मैं ये नॉर्मल वाला 2.jpg का इमेज लेता हूँ, फिर हम अपलोड करेंगे। ये हो गया अपलोड यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन एम्प्टी है, टेस्ट को क्लिक करेंगे एंड इट शुड प्रेडिक्ट। सो इट हैज़ प्रेडिक्टेड नॉर्मल एमआरआई और सीटी स्कैन। ओके, ये होगा यहाँ से। फिर हमसे फिर से चूज़ करेंगे और इस टाइम मैं एबनॉर्मल में से लेता हूँ। तो ये वाला लेता हूँ 6.jpg विच इज़ एबनॉर्मल। तो ये 6.jpg यहाँ पे आ गया, अपलोड। तो वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई एंड देन टेस्ट को क्लिक करता हूँ। तो ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टेड यहाँ पे आ गया, ब्रेन ट्यूमर। So you can play around it. You can actually try uploading different images and different CT scan images. You can even download from the Google, or and you can test your images also. So depending upon your model's accuracy, it will be working. So now in this way the project has been completed, and now इसको हम मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हो। अगर मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर रहे हो ना, तो अगर आप किसी ने ट्राई किया होगा कल का प्रैक्टिकल या फिर दिस प्रैक्टिकल, इफ़ यू आर ट्राइंग विथ योर मोबाइल फ़ोन, तो जब आप इस चूज़ फाइल को क्लिक करोगे, आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में से इमेज को पिक करो या फिर कैमरा से। तो इन दैट केस अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपका रियल टाइम कैमरा चालू होगा मोबाइल का, और मोबाइल कैमरा से जो फ़ोटो आप क्लिक करोगे, वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी। Okay. In that case, that photo will be uploaded over here. So उसके लिए आपको क्या करना होगा? For that purpose, you will have to just do a basic thing। इसका जो IP एड्रेस है आपका कंप्यूटर का, वो :5000। So in my case, the IP address is 172.20.10.2 :5000, वो उसका एड्रेस होगा। Now I will be showing you one more interesting thing। अब तक ये जो सिस्टम है ये मेरे कंप्यूटर में रन होगा, और मेरे वाईफाई नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स अटैच्ड है उन सब के अंदर ये काम करेगा। लेकिन अब हम इसको क्लाउड के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट सो दैट इट विल बी अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर मैं यहाँ पे इसको होस्ट करूँगा, तो वो सिस्टम आपके कंप्यूटर में ओपन होनी चाहिए। दैट थिंग आई नीड टू ट्राई, और वो अब हम यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए हम एक सर्विस यूज़ करेंगे। दैट सर्विस इज कॉल्ड nrock, and that service is actually will help us to form a tunnel। Actually everything will be hosted in local server only, but that my local server through a tunnel will be available on your computer, and this is actually a freeware or the free service. So they will host this thing, or the tunnel will be live for 2 hours. So once I will host here, this thing will be active for 2 hours on cloud, and for 2 hours you will be able to access it. But after 2 hours it will automatically expire. Again you will have to rerun the server. That's the thing. Now in order to do that, यहाँ पे मुझे थोड़ा चेंज करना होगा, और यहाँ पे मैं वो एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, फ्लास्क nrock import run with nrock। Okay, so यहाँ पे this is showing here what is that। So this the provided Flask app will be securely exposed to the public internet via nrock when run। Okay, so whenever you will run, it will be publicly available on internet, and if I give you some link, so in that case you will be able to access my सर्वर। ओके, तो ये जो लोकल होस्ट है जो मेरे कंप्यूटर में, वो आप आपके कंप्यूटर में एक्सेस कर पाओगे, इसका वो मीनिंग है। तो लेट्स से वी इंपोर्ट दिस थिंग, एंड देन यहाँ पे एक सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो ऐप है ना, सो यहाँ पे हम लिखेंगे रन विथ nrock एंड देन ऐप का नाम। नाउ इट्स देयर, एंड सेकेंडली दिस थिंग, सो आई जस्ट क्लोज दिस थिंग। यहाँ पे ये लगेगा नहीं, बिकॉज दिस इज लोकल होस्ट का एड्रेस हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसको सिंपली लिखना होगा app.run, दैट्स इट, एंड दैट्स फाइन।
नाउ आई नीड टू रन दिस। ये दो चेंजेस करने से ये सब कुछ अभी यहाँ पे हो जाएगा। सो इट विल बी available, so it will run. So it will definitely take some time to run. So now you see, now you see it has loaded everything. तो यहाँ पे कुछ अलग आया है। अभी अलग क्या है वो पहले हम देखते हैं। It is saying that this is running with this something, or this is the server, or the web interface is this one. The port number is 4040 in this case, and the forwarding this one to this is the, let's say this is http, this is .nrock.io. So that's the IP address or the URL. And again, this is forwarding to, this is https link, secure server, and this is the not secure server, like that. But now it is available on this server. Okay, तो यहाँ पे ये available है nrock service के through. Now it's actually hosted in my computer, but through this tunnel it will be available on your computer. तो मैं आप यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और चार्ट में डालता हूँ. So now you can open in your computer. So I will be putting this in the chat, and you just try on your computer that whether this site is available on your computer or not. ओके, तो आप अगर इसको लिंक को ओपन करोगे, मे बी मोबाइल फ़ोन से भी आप करोगे तो भी होगा, कहीं से भी करोगे तो भी होगा. तो चैट में मैंने लिंक डाली है, तो यू जस्ट ट्राई कि क्या आप इसको ओपन कर पा रहे हो. आई थिंक समबडी हैज़ ओपन, और जिन लोगों ने भी ओपन किया है जस्ट कंफर्म कि दे हैव ओपनड. ओके, सम एरर हैज़ ऑकर्ड, आई थिंक परमिशन एरर, आई थिंक टू इमेजेस फोल्डर. लेकिन आपने ओपन किया है किसी ने, तो किसी एक को. ओके, इट्स वर्किंग. Okay, fine. Two people have tested it and it is working. So now, in this way, it will be available on cloud also. तो जो भी आप यहाँ पे करोगे वो host होगा local server पे, लेकिन it will be available on cloud so that anybody in the world can access my local server, and it can be tested. आप इसको आपके मोबाइल फोन से भी ट्राई कर सकते हो, एंड बाय ट्राइंग थ्रू योर मोबाइल फोन आप एक्चुअली वहां पे एक फोटो क्लिक करोगे. तो इन दैट केस अगर आप फाइल इनपुट को क्लिक करोगे ना, सो वो आप मोबाइल फ़ोन के कैमरा से फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो. इफ़ यू आर ट्राइंग फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, you can also test it. So if you test it from mobile phone, you will just confirm in the chat you have tested from the mobile phone. So we need to check whether it is working in mobile phone. So जिन लोगों ने भी मोबाइल फ़ोन से टेस्ट किया है, जस्ट आप मैसेज में या फिर चैट में मुझे बोलो कि they have tested. Okay, fine. Atharva has tested in the mobile phone, so it's fine. Okay, Rajeshri also tested from the mobile phone. And I think somebody has uploaded one image also. See, this is the image. Okay, no tumor. इतने सारे images आप लोगों ने जो भी images यहाँ पे upload किए हैं, वो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं. आपके आपने जो भी images upload किए ना आपके मोबाइल फ़ोन से, वो सारी images मेरे पास आ चुकी है. तो this is the image. ये somebody has uploaded this image, तो वो यहाँ पे आया है. नो ट्यूमर वाला इन्होंने किसी ने ये इमेज, ये आप लोगों ने अपलोड की हुई इमेजेस है. दीज टू इमेजेस, ये जो इमेजेस है मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो इमेजेस अपने अपलोड किए हैं, एंड दैट इज अवेलेबल टू मी इन माय सिस्टम. ओके, सो लाइकवाइज यू कैन एक्चुअली होस्ट with this. So that's the end for today's session. So before we conclude, let me, I think I have closed the server. Okay, so let me revise the things what we have done, and after that we will conclude with this today's session. So initially, I have taken this thing, the folder. I have created the static folder and the template folder. Inside the static folder, I have created the images folder, and inside the images folder, I have
just stored a sample.jpg. That was a very basic image. That was the empty image or the blank image. And after that, in the templates folder, I need to create something called HTML documents, and whatever your CSS files and JavaScripts will be there, that will be also there in static folder. Okay, अगर आप CSS and JavaScript इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, those are from the, of course, from the computer science background, they can try CSS and JavaScripts also. So in that case, you will have to put all these stuff in the static folder. Or for now it's fine, itna bhi aap, it's fine. Okay, and the rest of the stuff, the HTML documents will be in template folder. तो इसके अंदर हमने जो प्रीवियसली प्रैक्टिकल्स किए, जो भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, दैट कोड मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा और उसको मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा. दैट्स द आइडिया. ओके, यहाँ पे कुछ नया नहीं करेंगे. जो हमने प्रीवियसली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए उसी को GUI वेब इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे. नाउ CNN test डॉट py, दैट्स द प्रीवियस कोड वी आर हैविंग. तो उसको यहाँ पे हम लेकर आए हैं एंड उसके अंदर ये फंक्शन जो कि ऑलरेडी हमने उस टाइम भी बनाया था, वो केरास को मॉडल को लोड करता है, फिर एक इमेज लेता है एंड उसको प्रेडिक्ट करता है. ऑफ कोर्स बिफोर दिस मॉडल विल कम आफ्टर ट्रेनिंग दैट CNN कोड. सो रेफर दैट वीडियो ऑल्सो, CNN ट्रेनिंग का, जिसके अंदर we are training the model with some data set images, and after that this keras model.h5 is getting created. Also we are using the teachable machine, so you just go with teachable machine also. Actually this keras model is created from teachable machine with better accuracy, and we have seen the learning from scratch approach which was not giving us the better accuracy. So also we have seen the transfer learning method. तो ट्रांसफर लर्निंग से भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, टीचेबल मशीन से भी और लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच से भी. तो वो हमने देखा है यहाँ पे. एंड फिर इस मॉडल को हम लोड करेंगे एंड जो भी इमेज आप लोगे उसको दे देंगे एंड इट विल फाइंड आउट वेदर ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड. अब आप जो प्रोजेक्ट्स करने वाले हो जिसके अंदर हो सकता है प्लांट लिप डिसीज डिटेक्शन, उसके अंदर 4 कैटेगरीज होंगी. एक ब्रेन, एक लेट्स से डिसीज 1, डिसीज 2, डिसीज 3 एंड हेल्दी, 4 कैटेगरी होंगी. तो यहाँ पे क्या आएगा, if idx equal to 0, this is 1. Else if, that means elif idx equal to 1, this is 1, or this is 2. Else if idx equal to 2, that means this is 2, like that. So like that it will be there, and else healthy leaf. Okay, तो इस तरह से आपका ये जो if else का लैडर है वो बढ़ेगा. नाउ एज देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा. ओके, तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से वो अलग अलग होगा. इतना ही चेंज होगा इस वाले कोड में, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. ओके, और ट्रेनिंग वाले कोड में जो डेंस हम ऐड करते हैं लास्ट के लेयर में, फाइनल लेयर के अंदर, वो जो डेंस है, अगर वहां पे 2 कैटेगरीज होगी तो 2 हम मेंशन करेंगे, 4 कैटेगरीज होंगी तो 4 मेंशन करेंगे, 10 कैटेगरीज होंगी तो 10 मेंशन करना होगा. जो लास्ट का डेंस है तो वो ऑल्सो यू रिमेंबर एंड यू जस्ट चेक इन दैट CNN ट्रेनिंग वाला वीडियो और इस वाले वीडियो के अंदर. तो फिर यहाँ से ये प्रोजेक्ट इस तरह से बनेगा. ये फाइल को हम यूज़ करेंगे और एक बेसिक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे. एक HTML फाइल को एक रूट यहाँ पे बनाएंगे. यू कैन ऑल्सो ऐड सम स्टैटिक पेजेस. ओके, यहाँ पे सिर्फ हम एक ही पेज ऐड कर रहे हैं, आप उसमें कुछ होम पेज ऐड कर सकते हो, अबाउट अस पेज ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड कर सकते हो, एंड इवन नो अबाउट ब्रेन ट्यूमर प्रिकॉशंस. अगर कोविड का भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो ट्राई जो चेस्ट के एक्सरे इमेजेस होते हैं ना, यू मे फाइंड डेटा सेट ऑन ऑनलाइन कि एक्सरे इमेजेस ऑफ चेस्ट, उसके बेसिस पे कोविड रिलेटेड न्यूमोनिया है या नहीं, या फिर कोविड है या नहीं वो चेक कर सकते हो. अभी हम ब्रेन ट्यूमर का कर रहे हैं. लंग कैंसर का डेटा सेट अगर आपके पास होगा तो लंग कैंसर डिटेक्ट करोगे. कोविड का अगर आपको चेस्ट का एक्सरे का डेटा सेट मिल गया तो आप चेक करोगे कि उसको कोविड है या नहीं. किडनी का अल्ट्रासाउंड इमेजेस का डेटा सेट मिल गया तो आप किडनी का क्रोनिक किडनी डिसीज फाइंड आउट कर सकते हो. थायराइड का अल्ट्रासोनिक इमेजेस मिल गया तो थायराइड डिसीज आप डिटेक्ट कर सकते हो. ब्रेन ट्यूमर इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हो. प्लांट का लिप डिसीज का डेटा सेट मिल गया, लेट से आपको टोमेटो के लीव्स का डेटा सेट मिल गया, तो यू कैन फाइंड आउट द टोमेटो लीफ डिसीज डिटेक्शन का प्रोजेक्ट कर सकते हो. अगर आपको ग्रेप्स का मिल गया तो ग्रेप्स का कर सकते हो. फ्रूट का क्वालिटी का मिल गया, मतलब बैड क्वालिटी फ्रूट एंड गुड क्वालिटी फ्रूट, गुड क्वालिटी एप्पल बैड क्वालिटी एप्पल, तो उसको आप चेक कर सकते हो कि आपने जो इमेज दिया वो गुड क्वालिटी है बैड क्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग आप सेग्रीगेट कर सकते हो. अगर आपके पास एनिमल्स का डेटा सेट मिल गया, आप एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो ये डॉग है, कैट है और एनी अदर एनिमल है.
अगर आपके पास बर्ड्स का डेटा सेट मिल गया तो आप बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स मिल गए, टेबल, चेयर, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हो। तो एनी प्रोडक्ट, लेट्स से इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वेदर दैट प्रोडक्ट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये जो क्वालिटी का वर्क है, क्वालिटी कंट्रोल, ये ऑटोमेटिकली हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, दे कैन टेस्ट वेदर देयर पीसीबीज आर गुड क्वालिटी और फॉल्टी पीसीबी बाय अपलोडिंग द पीसीबी इमेज। तो वो गुड क्वालिटी पीसीबी या खराब क्वालिटी का पीसीबी है। तो इवन इन मैकेनिकल इंडस्ट्री ऑल्सो, इफ सम गियर्स आर देयर, तो वो गियर्स अगर खराब है या दे आर गुड क्वालिटी, दैट कैन बी टेस्टेड। अगर उनके अंदर जो भी वियर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो दे कैन फाइंड इट आउट। तो हर जगह इसका एप्लीकेशन होगा। अब स्काई इज द लिमिट। एग्रीकल्चर में होगा तो सॉइल के फोटो आप मोबाइल फोन से, अभी अपने मोबाइल फोन पे ट्राई किया, मोबाइल फोन से आप सॉइल का फोटो अगर खींचोगे, अपलोड करोगे, तो ये प्रिडिक्ट करेगा कि सॉइल कौन सा टाइप है, डेजर्ट सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके क्रॉप कौन सा। अगर ब्लैक सॉइल है तो हम नीचे लिस्ट, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट, ऑन यहाँ पे ऑन द वेबसाइट, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टेड। इसके नीचे और एक लेबल डाल के डिस्प्ले कर सकते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। वैसे अगर सॉइल आपने फाइंड आउट किया कि ये रेड सॉइल है, तो उसके नीचे आप सजेस्टेड क्रॉप्स का लिस्ट डाल सकते हो कि ये क्रॉप्स आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपने प्लांट का लिप डिसे डिटेक्ट कर लिया, तो उस पे कौन से पेस्टिसाइड स्प्रे करने चाहिए वो आप वहां पे बता सकते हो नीचे एक लेबल लेके। तो यहाँ पे उसका इसका इस टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज हो सकता है, एज पर एज द इमेज रिकॉग्निशन का बात है। बाकी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हमने किए, जिसके अंदर रिग्रेशन एनालिसिस हुआ था, जिसके अंदर हमने सैलरी प्रिडिक्शन का किया, फिर पोजीशन वर्सेस सैलरी किया, देन और एक प्रोजेक्ट किया हमने जहाँ पे कार सेल्स प्रिडिक्शन किया, जिसके अंदर हमने अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज किए। तो उस टाइम हमने कार का सेल्स प्रिडिक्शन करने के लिए किया। आप उसको स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर इट टू हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। यू कैन एक्सप्लोर इट वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है एक सिटी के अंदर, उसका पॉपुलेशन, या फिर नंबर ऑफ गार्डन्स कितने हैं, या फिर लाइव स्टॉक कितने हैं, एग्रीकल्चर एरिया कितना है उस पर्टिकुलर, तो उस हिसाब से कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके अंदर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट करेंगे। सो वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड विथ ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द ट्रेनिंग सिलेबस। सो नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, आई विल बी गिविंग यू द प्रोजेक्ट लिस्ट। तो मैं उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको दे दूंगा, तो आप उसमें से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करो। अदरवाइज व्हाट आई विल बी डूइंग, फॉर एवरी 2-3 स्टूडेंट्स आई विल बी गिविंग अ सेम प्रोजेक्ट। तो मैं एक अराउंड 10 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट दे दूंगा, इसके बेसिस पे ऑन दिस 10 प्लस प्रोजेक्ट दे दूंगा। उसके अंदर फॉर एवरी 2-3 स्टूडेंट सम प्रोजेक्ट्स विल बी सेम, तो वो अलग इंडिविजुअली इंप्लीमेंट करो। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, जो भी आपने सीखा है आज तक। फॉर दैट आई विल बी गिविंग यू नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड वॉट एवर योर क्वेरीज एंड डाउट्स विल बी देयर, तो वो उसके लिए हम सेशंस रखेंगे। सो वंस आई विल कलेक्ट significant number of doubts and queries, we will arrange a session for that. So every Saturday hereafter we will be having the session. So the daily session is suspended for 1 month. So in 1 month you will have to complete the projects. So I'll be giving you list shortly, so I will drop that list in the WhatsApp group, or otherwise I will also upload that in the Google Drive. एंड ऑल्सो आई विल गिव जो भी नेम्स है स्टूडेंट के, आई विल स्पेसिफाई देयर। तो उन स्टूडेंट को वो प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा। तो कुछ प्रोजेक्ट्स इमेज प्रोसेसिंग एंड कुछ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दैट थिंग, एंड द डेटा सेट के लिंक्स ऑल्सो आई विल गिव। और अदरवाइज व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू सर्च द डेटा सेट फॉर दैट प्रोजेक्ट। ओके, एंड वो डेटा सेट आपको कहाँ से मिलेगा, कैगल। सो आप मशीन लर्निंग का अगर फर्स्ट लेक्चर आप रिवाइज करोगे, तो इसके अंदर मैंने कुछ टूल्स बताए थे जिससे आप डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो या फिर डेटा सेट को ले सकते हो। तो जैसे ये ब्रेन ट्यूमर का डेटा सेट हमने डाउनलोड किया कैगल से, वैसे ही लंग कैंसर, कोविड का, चेस्ट सीटी स्कैन वगैरह वो सारा आपको मिलेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूंगा, यू विल हैव टू वर्क ऑन दोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट,
एंड यू विल हैव टू सबमिट योर वर्क, और एटलीस्ट एट द एंड आपको जो भी उसके अंदर डाउट्स क्वेरीज आएंगे, एटलीस्ट आप इतना करोगे, ओके, जो भी मैंने यहाँ पे दिखा है उसका जीयूआई बना के एंड उसके अंदर डिस्प्ले करके। अभी ये जीयूआई बनाने के कोड्स वगैरह, द सैम्पल कोड्स जो आज हमने यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर का किया है एंड कल भी एक किया था, तो दैट आई विल अपलोड ऑन द गूगल ड्राइव। तो वहां से आप उस कोड को एक्सेस कर सकते हो, एंड जो भी मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा उसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो ओवरऑल टोटल प्रॉब्लम स्टेटमेंट 10+ होंगे, तो उस पर आप काम करोगे, एंड दैट विल बी अ प्रैक्टिस फॉर यू। एंड वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद इट विल बी अ ग्रेट रिविजन टू ऑल दीज टॉपिक्स जो भी हमने आज तक देखा है, उसका सबका रिविजन भी हो जाएगा आपका। एंड नाउ वंस यू कंप्लीट ऑल दिस प्रोजेक्ट्स यू विल बी एबल टू हैंडल any real world project in machine learning, AI and deep learning domain. Okay, so that's the end for today's session. If you are having any queries, you can put in chat. We will wait for some time.